जी अनंतम अनंतम शुकराना मेरे महाराज। आपदा पल पल शुकराना गुरु महाराज। हर दसवां स्वास शुकराना गुरु महाराज। जय गुरु जी विपन अंकल, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। शुकराना सारी संगत जी का, विपन अंकल सौम्या आंटी जी का शुकराना, गुरु जी महाराज का शुकराना। संगत जी अज मैं अपना 24 तरीक का शुकराना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी के चरणों च। गुरु जी की आग्ञा नाल गुरु जी महाराज ते बहुत पॉजिटिव सत्संग आते ने गुरु महाराज। आप दा बेअंत शुकराना गुरु महाराज। आप ते गुरु जी आप दी बच्ची अज कल टिक्के वाले दिन अपनी बुआ दे नाल अपने उन्हां दे घर गई है गुरु महाराज। आप दी बेटी जो बहुत उदास रहती है गुरु महाराज, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਉਸ ਦੀ ਭੂਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਘੁਟਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਰਸਤੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਏਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੋ, ਉਸਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੋ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹਰ ਅੱਛੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਰਦ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ ਮਾਲਿਕ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਪੁਕਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੋ ਵੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਸ ਪੱਕੇ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਲਾਜ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਹਿਣ ਦੀ।
गुरु महाराज आप दे चरणा च आप दे बच्चे अनमोल दी अरदास है गुरु जी, उसका बिल्कुल भी कम नहीं है गुरु महाराज। वो बिल्कुल ही घर बैठा होया है और मेरे कोल भी कम नहीं है गुरु जी। आप जानते हो कि बिना पैसों तो कुछ भी नहीं ਹੁੰਦਾ है ना। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬਖਸ਼ੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੰਧੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਸੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਿਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ शुक्राना सत्संग करा गुरु महाराज। बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर नहीं आई गुरु महाराज। बड़े मंदिर बुला लो गुरु महाराज, बड़े मंदिर बुला लो। मैं बड़े मंदिर जाके थोड़े कोल बैठ के खूब रोआ गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना ओम नमः गुरु जी शिवाय शुक्राना। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके चरणों में, आपके कमल रूपी श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे समस्त परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके चरणों में शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प अर्पित कर रही हूँ। बाबा जी स्वीकार करें और गलतियों को क्षमा करें। बाबा जी आप विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल को, उनके उनके समस्त टीम को, उनके परिवार को और समस्त संगत परिवार को आपकी स्पेशल ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। सभी संतुष्ट होकर तरक्की करते रहें। हम सब पर आपका आशीष बना रहे बाबा जी। हर गलतियों को कृपया क्षमा करें। बाबा जी यूँ तो भाई दूज के भाई दूज तक बहुत सब कुछ सहर्ष त्योहार को हम सब मनाए हैं बाबा जी आपकी कृपा से। और आज मैं अपनी छोटी बेटी के पास आई हूँ, वो और भी अच्छा लग रहा है बच्चों से मिलकर आपकी कृपा से बाबा जी। आगे भी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपकी कृपा हम सब पर बरसती रहेगी और हम हर्ष उल्लास के साथ अपनी जिंदगी को सहर्ष आपके चरणों में खुशी खुशी सब खुशी खुशी सहर्ष बिताते हुए, आपको स्मरण करते हुए, आपको शुक्राना और सत्संग के माध्यम से जीवन को आनंदमय बनाएंगे बाबा जी, सब आपकी कृपा से। बाबा जी हम एक स्पेशल काम से भी बाहर आए हुए हैं। आप सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं आप। संगत जी हम एक विशेष कार्य से बाहर आए हुए हैं। जिस विशेष कार्य के लिए हमें जिस स्थान और पते पर जाना था वहां तक पहुंचने में बहुत तकलीफ हुई और निश्चित स्थान पर पहुंचकर भी हम थोड़े से भटक से गए थे। हम दोनों पति पत्नी भटके हुए थे। एक न्यायिक प्रकरण था, इसलिए हमें आना जरूरी था। वह जो मैंने इस जब पता चला कि हम पहुंच गए हैं लेकिन निश्चित स्थान तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर अंत में मुझे बाबा जी ही याद आया और मैं गुरु जी रटते रही। बाबा जी निश्चित स्थान तक पहुंचा दीजिए, आपकी कृपा से हमें वहां तक पहुंचना जरूरी है। आप ही लेकर आए हो और आप ही हमें उस पते तक पहुंचा दीजिए।
और हमें हमें सुकून मिले। और बाबा जी 10-15 मिनट के बाद ही मेरे पति देव ही उस स्थान तक अपने सूझबूझ से पहुंच गए। वैसे वहां तक पहुंचने में हमें काफी दिक्कतें हुई। किसी से भी पूछने पर पता कोई भी सही नहीं बता रहे थे, लेकिन एकमात्र गुरु जी की कृपा से हम उस स्थान पर पहुंच गए। हमारी हमें इसी बात का सुकून है कि हम निश्चित स्थान पर पहुंच गए। आगे तो हम ज़्यादा कुछ मतलब केवल पता ठिकाना देखकर हम वापस लौट आए हैं। जय बाबा जी। जो जो कुछ भी करेंगे गुरु जी ही करेंगे, कराएंगे। उनके चरणों में अरदास है, उम्मीद है कि जो भी करेंगे कराएंगे। न्यायिक प्रकरण के बाबत वह अवश्य करेंगे। अभी इसका खुलासा करना उचित नहीं है। जय बाबा जी। बाबा जी कहते हैं, समझाइश देते हुए कहते हैं, बेटा चांदी की चेन गले में पहनने से अपनों के साथ संबंध मधुर होते हैं, और चांदी की चेन गले में पहनने से मंगल अच्छे फल देने लगते हैं। अपने बच्चों को गले में चांदी की चेन पहनाएं, इससे आपके बच्चों को दिमाग अच्छा रहेगा, अच्छे व्यवहार सीखेंगे, और अच्छे व्यवहार करने से वे अपने जीवन में भी उन्नति कर पाएंगे। इसीलिए चांदी का चैन पहनना हर तरह से महत्वपूर्ण है। एक्चुअली में चांदी का चंद्र ग्रहण सॉरी संगत जी, चांदी का संबंध चंद्रमा से संबंधित होता है। चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, और पढ़ने वाले विद्यार्थी जो बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए या हम सभी के लिए चांदी बहुत ही उपयुक्त उपयुक्त गहना है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को संयत रखते हैं, संतुलित रहकर जीवन में व्यवहार करते हैं, और इससे कामयाबी हासिल करते हैं। क्योंकि मंगल भी चंद्रमा के संपर्क में आकर उष्णता को कम कर देते हैं। जय गुरु जी। आपके चरणों में ये संदेश देने के लिए और आदेश देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, संगत जी, बाबा जी का और एक संदेश है जो हम सभी बच्चों के लिए अत्यंत अनुकरणीय है। बाबा जी कहते हैं, आजकल आजकल लोग अपनों का साथ छोड़कर दुनिया में अपने ढूंढते हैं। बेटा वो ये समझ ही नहीं पाते, जो सच में अपने होते हैं वो बस केवल दिल में महसूस किए जाते हैं, और जो दिल के बहुत करीब रहते हैं वो इस चकाचौंध की दुनिया में माने अपनों की स्मृति को स्वयं धूमिल कर देते हैं। इसलिए अपनों की पहचान करने के लिए और अपने दिल में उनको टटोलने के लिए, अपनापन का संबंध स्थायित्व बनाकर रखने के लिए अपने गुरु का सिमरन अवश्य करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से हम अपनों का और परायों का भेद समझ सकते हैं। संगत जी, गुरुपा का यह संदेश एकदम सटीक है। हम सभी महसूस करते हैं, हम इस दुनिया की भीड़ में जहाँ कोई मीठे बोल बोलते हैं या अपनापन का व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उनके दिल में हमारे लिए कोई अपनापन का भाव नहीं होता। ऐसे लोग से हम ठगे जाते हैं, और अंत में हम भगवान को ही कोसते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया है। किंतु हमारे गुरु पर यही समझा रहे हैं कि बेटा जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वो तो तुम्हारे दिल के आसपास होते हैं। जैसे स्वयं भगवान, स्वयं गुरु, माता पिता, परिवार, पति पत्नी, बच्चे, जो भी सोल हैं, अपनापन जिनसे संबंध होता है वो तो हमारे दिल के करीब होते हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं, और भूल कर दुनिया की इस चकाचौंध में अपना अपनापन ढूंढने के लिए चकाचौंध के भीड़ में खो से जाते हैं। और चकाचौंध में क्या होता है, सत्य छिप जाता है, और असत्य असत्य अपना
दम भरने लगता है और सत्य जो है उसका सत्य का दम घुटने लगता है। इसीलिए हमारे गुरुपा हम सबको संदेश दे रहे हैं कि बेटा ऐसी गलती कभी मत करना कि अपनापन ढूंढने के लिए कभी दुनिया के चकाचौंध में अपने आप को खो मत देना, क्योंकि तुम और तुम्हारा अपनापन स्वयं तुम्हारे करीब, तुम्हारे दिल के, तुम्हारे आत्मा के करीब होते हैं। उन्हें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यदि हम में से ऐसा हम करते हैं तो हम स्वयं को अब बाबा जी का आदेश समझकर अपने आप को रोक लें, क्योंकि चकाचौंध में केवल केवल बनावटीपन होता है, असत्य होता है, जो चंद घंटों का चकाचौंध रहता है। और जो सत्य होता है वह अमीठ और सत्य बनकर हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहते, फिर चाहे वो हमारे साथ रहे या न रहे, जहाँ भी रहे हमारे लिए उनके मन में शाश्वत प्रेम रहता है और हमारे लिए उनके मन में शाश्वत प्रेम रहता है। इसी बात को बताने के लिए गुरुपा कहते हैं कि बेटा तुम गुरु का स्मरण करते रहो, सुमिरन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, तुम्हें मैं खोने, दुनिया के चकाचौंध में खोने नहीं दूंगा, तुम्हें सत्य का पहचान अपने आप कराऊंगा। तो जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। इतना कहकर संगत जी मैं गुरु चरणों में अपनी ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से, पूरे संगत परिवार की ओर से नतमस्तक होते हुए बेअंत शुक्राना अर्पित करते हुए वाणी पर विराम लगाती हूँ। मंत्र जाप करते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। अगले दिन फिर शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी बाबा जी का आदेश पाकर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शिव जी, सदा सदा सदा। धरती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। धरती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगू ना पाई। तति वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। सतगुरु पूरा भेटिया, जिन बढ़ती बढ़ाई। राम नाम औखधु दिया, एका लिव लाई। ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। राखी लिए तिन रखन हार, सब व्याधि मिटाई। कहु नानक कृपा भई, प्रभु भय सहाय। ताती वाव न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज मैं सरब रोग का औखद नाम का पाठ कंटिन्यू करूंगी। पार्ट 4।
और आज का दिन है, आज की डेट है 26 अक्टूबर 2025 और आज का डे संडे है और टाइमिंग्स हैं 19:36 PM। ये मेरा संध्याकालीन शुक्राना सत्संग है। शुक्राना प्लस पाठ सर्व रोग का औषध नाम कंटिन्यू करूंगी। और मैं ये पाठ गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से समर्पित करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना डैडी, आप मुझे आज्ञा देंगे और मैं अपना पाठ सर्व रोग का औषध नाम रिकॉर्ड करके शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विलावलू महला पंजवा, गुरी पूरे मेरी राखी लाई, अमृत नाम हृदय मही दो दीनो जन्म जन्म की मैलू गई रहाओ, निवरे दूत दुसट बैराई, गुरपूरे का जपिया जापू, कहा करे कोई बेचारा, प्रभ मेरे का बड़ प्रतापू, सिमरी 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 सुखु पाइया, चरण कमल रखु मन माई, ताकि सरणी परियो नानक दासु, जाते ऊपरी को नाही। भावार्थ, हे भाई, विकारों के टकराव में पूरे गुरु ने मेरी लाज रख ली है। गुरु ने रूहानी जीवन देने वाला हरि नाम मेरे हृदय में बसा दिया है। उस नाम की बरकत से अनेकों जन्मों के दुष्कर्मों की मैल मेरे मन से धुल गई है। रहाऊ, हे भाई, पूरे गुरु का बताया हुआ हरि नाम जब से मैंने जपना शुरू किया है, कामादिक सारे वैरी दुर्जन भाग गए हैं। मेरे प्रभु की बड़ी ताकत है, मेरे प्रभु की बड़ी ताकत है, अब इनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे प्रभु की बड़ी ताकत है, अब इनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे भाई, गुरु की कृपा से परमात्मा के सुंदर चरण मेरे मन में आसरा बन गए हैं। उसका नाम हर वक्त स्मरण कर करके मैंने आत्मिक आनंद हासिल कर लिया है। हे भाई, प्रभु का दास नानक उस प्रभु की शरण पड़ गया है जिससे बड़ा और कोई नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गौड़ी महला पंजवा, थिरुधरी वैसऊ हरिजन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज संवारे, रहाऊ दुसट दूत परमेसरी मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह साहब सब बसी करी दीने, अमृत नाम महारस पीने, बादशाह शाह सब बसी कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होई बजऊ भगवान, साध संगति मिली कीनो दान, सरणी परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी। भावार्थ है, हे प्रिय भक्तजनों, अपने हृदय में यह पूरी श्रद्धा बनाओ कि सतगुरु ने हमारे सारे काम संवार दिए हैं, कि सतगुरु ने हमारे सारे काम
संवार दिए हैं कि सतगुरु शरण पड़ने वालों के काम पूरे कर देता है। राहो, हे संत जनों, यह निश्चय करो कि जो मनुष्य अन्य सभी सहारे छोड़कर परमेश्वर का सहारा ले लेता है, यह निश्चय करो कि जो मनुष्य अन्य सभी सहारे छोड़कर परमेश्वर का सहारा ले लेता है, परमेश्वर ने उसके दुश्मन बैरी सब खत्म कर दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ईश्वर ने अपने सेवक की लाज जरूर रखी है। ईश्वर ने अपने सेवक की लाज जरूर रखी है। हे संत जनों, परमेश्वर ने अपने सेवकों को दुनिया के शाहों बादशाहों की तरफ से बेगरज कर दिया है। परमेश्वर के सेवक आत्मिक जीवन देने वाला सब रसों से मीठा प्रभु का नाम पीते रहते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, परमात्मा ने आप लोगों पर नाम की बख्शीश की है। आप साधु संगत सती संग में शामिल होकर निर्भय हो, भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो। हे नानक, प्रभु के दर पर अरदास कर और कह, हे अंतर्यामी प्रभु, हे स्वामी प्रभु, मैं तेरी शरण बड़ा हूँ। मैंने तेरा सहारा लिया है, मुझे अपने नाम का प्रसाद बख्श दो। प्रभु के दर पर अरदास कर और कह, हे अंतर्यामी प्रभु, हे स्वामी प्रभु, मैं तेरी शरण में पड़ा हूँ। मैंने तेरे सहारा लिया है, मुझे अपने नाम का प्रसाद बख्श दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। लाख करोरी बंधु न परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। अनेक माइया रंग तिख न बुझावे, हरि का नाम जपत अघावे। जिहि मार्गी इहु जात इकेला, तह हरि नाम संगी होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा थी आइये, नानक गुरमुखी परम गीत पाइये। भावार्थ, मनुष्य सारी दुनिया का राजा होकर भी दुखी रहता है, लेकिन प्रभु का नाम जपने से सुखी हो जाता है। मनुष्य सारी दुनिया का राजा होकर भी दुखी रहता है, लेकिन प्रभु का नाम जपने से सुखी हो जाता है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी माया की भूख पर रोक नहीं लग सकती। इस माया जाल से प्रभु का नाम जप कर मनुष्य पार उतर जाता है। बेअंत माया होते हुए भी उसकी भूख नहीं मिटती, मगर प्रभु का नाम जपने से मनुष्य का माया की तरफ से पेट भर जाता है। जिन रास्तों पर यह जीव अकेला जाता है, वहां इसे सुख देने वाला प्रभु का नाम होता है। तभी तो हे मन, ऐसे सुखदाई नाम का सदैव ही सुमिरन करना चाहिए। हे नानक, गुरु के जरिए नाम जपने से ऊंचा दर्जा मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे सुखदाई नाम का सदैव ही सुमिरन करना चाहिए। हे नानक, गुरु के जरिए नाम जपने से ऊंचा दर्जा मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्रेमियों, गौरत्व लब है कि अगर हम किसी दुख के कारण भी इन दुख निवारक पावन शब्दों का पाठ करने लग जाते हैं, तो समझ लेना कि साहिब ने हमारे दुखों को दवा बनाकर हमें अपने नाम के साथ जोड़ लिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहीं अपने मन में हर दिन पाठ के दौरान प्रभु कृपा हो जाने की प्रतीक्षा मत करते रहना। अपने मुंह से उस साहिब का नाम ले सकना भी उस मालिक की कृपा का ही प्रमाण है, क्योंकि उसकी मेहर के बगैर कोई जीव उसका नाम अपनी जबान पर ला ही नहीं सकता। लिहाजा अगर प्रभु ने कोई विधि बनाकर अपने चरणों से जुड़ने का ये मौका दिया है, तो इसे किसी बेबुनियाद शंका या दुविधा के कारण व्यर्थ ही मत गवा देना। हमारी इस निरंतर आग्रह की वास्तविकता के बारे में
हमारे साथ किसी भी स्तर पर जुड़ने वाले हर शख्स को ये भी बताना चाहेंगे कि इन्हीं शब्दों के भाव अर्थों सहित बनी हुई सीडी या गुरबाणी की रूहानी ताकतों के बारे में बनी हुई हमारे दुर्लभ फिल्म गुरबाणी के कोतक की डीवीडी सत्संगियों और गरज मंदों तक पहुंचाने के हमारे किसी प्रयास के पीछे किसी भी तरह का कोई भी बड़ा मुनाफा कमाने का व्यापारिक मकसद बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे मामूली से यत्नों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठोस प्रमाणों के आधार पर साहिब के नाम के साथ जोड़ देने की हमारी हर कोशिश के पीछे संसार का सबसे बड़ा पुण्य कमाने की प्रबल लालसा जरूर है। इस सफाई देने के पीछे भी इस सफाई देने के पीछे भी हमारी बड़ी लालसा है कि कहीं हमारे इन रूहानी प्रयास को भी कोई सज्जन आम तिजारती तौर पर बड़ा चढ़ाकर तारीफों के पुल बांधने के बाद बेचा गया आम बाजारू साजो सामान समझकर किसी दुविधा के कारण शब्दों के रूप में मिली हुई साहिब के नाम की इलाही दवाई का भरपूर लाभ उठाने से वंचित न रह जाए। लिहाजा मेहरबानी करके बिना किसी तरह के शक या दुविधा के पूरे विश्वास, श्रद्धा और एकाग्रता के साथ बताई गई विधि के अनुसार रोजाना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पाठ जरूर करते रहना चाहिए, ताकि साहिब की कृपा से सिर्फ हम अपने शारीरिक रोगों से ही नहीं बल्कि अपने जन्मों जन्म के उन पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सके जिनकी वजह से तरह तरह कष्ट कलेश और रोग हमारे इस मानव जीवन को लगातार नर्क बनाए रखते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वैसे तो हर तरह के लोगों से बचाव के लिए परमात्मा को हर सांस के साथ याद करते रहना चाहिए, मगर संतों महापुरुषों के अनुसार अगर जरूरत के मुताबिक किसी भी शब्द या शब्दों को लगातार 41 दिन तक प्रातः काल नहाने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ पाठ कर लिया जाए तो हर तरह की सफलता हासिल की जा सकती है, बशर्ते उन 41 दिनों के दौरान पाठ करने वाला सज्जन संयम से काम लेता हुआ सच बोले, शुद्ध शाकाहारी भोजन करे, हर तरह की नशाखोरी और स्त्री सहवास से दूर रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस तरह का यह मतलब भी नहीं लेना चाहिए कि 41 दिनों के बाद मनोरथ पूरा हो जाने के बाद पाठ बंद कर देना चाहिए। पाठ तो सारा जीवन ही जारी रखना चाहिए, क्योंकि ठीक हो जाने के बाद पाठ बंद कर देने वाले को फिर से वही रोग दोबारा लगते देखे गए हैं। लिहाजा 41 दिनों वाली विधि के बारे में यही कहा जा सकता है कि शुरुआत में 41 दिनों के दौरान सदाचार, अनुशासन, त्याग, पाबंदी, श्रद्धा, एकाग्रता और मेहनत के जरिए अपने ही अकीदे की कसौटी पर खरे उतरते हुए अपने आप को तराश कर साहिब की कृपा का योग पात्र बनाने के लिए यह भी एक तरीका है, जिसे अपने ही जरिए अपने आप का एक ऐसा इम्तिहान भी कहा जा सकता है जिसमें पास हो जाने वाले के हाथों से कभी भी साहिबा का पल्ला छूटना नामुमकिन है। कट्टरपंथी या तर्कशील सज्जन इस 41 दिन वाले अभ्यास को कर्मकांड या अंधविश्वास भी कह सकते हैं, मगर इसे महापुरुषों के जरिए किसी कच्चे या अनघड़े को पक्का करने के साथ साथ घड़ने का शुरुआती तरीका भी कहा जा सकता है। अगर पाठ करते समय अपने सामने जल रख लिया जाए तो इंसानी आवाज के जरिए साहिब के नाम की तरंगों का स्पर्श पाकर इलाही दवाई बन जाने वाले उस जल को रोजाना अमृत की तरह इस्तेमाल किया जाए तो और भी लाभ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि इसी तरह विधि और विश्वास के साथ सामने जल रखकर पाठ करने के बाद उस जल के छींटे अपनी आंखों में मारते रहने से ही तो
तकरीबन 3 महीने के अंदर चंडीगढ़ निवासी जसवंत सिंह की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिन्हें विदेशों के डॉक्टर तक ने जवाब से मिल चुका था, जिन्हें विदेशों के डॉक्टरों तक से जवाब मिल चुका था, लिहाजा साहिब की मौज का क्या पता कि वो अपना नाम मुख से जपने, कानों से सुनने और अमृत जल रूप से पीने वाले किस भाग्यवान के सारे कष्ट, कलेश व रोग कब, कैसे, किस वक्त और किस विधि के जरिए हमेशा के लिए खत्म कर डाले। किसी भी तरह के सवाल, संदेह या दुविधा के समाधान के लिए आप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। वाहिगुरु हम सबका भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर डैडी मुझसे इस पाठ को करने में शुरू से और अब तक संगत जी, इस पाठ को मैंने 4 पार्ट्स में पूरा किया है और अब ये पार्ट पूरा हो गया है और अब मैं डैडी से मैं कहना चाह रही थी कि गुरुपा, अगर मुझसे इस पाठ को पढ़ने में कोई भी गलती हो गई है, उच्चारण में कोई त्रुटि रह गई है, तो मुझे क्षमा करें डैडी। हम आपके नादान बच्चे हैं और हमें अपना बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा डैडी, और हमारी गलतियों को इग्नोर करिएगा पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अब अंत में कहना चाहूंगी कि डैडी हर पल हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं पापा, हमारे घर की रक्षा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। बच्चे के माड़े ग्रह को टालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। रुका हुआ पैसा वापस दिलाएंगे आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। घर की नेगेटिविटी बाहर निकाल कर फेंकने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। घर की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले के लिए डैडी अपना भी ध्यान रखिए पापा, क्योंकि डैडी आपके बच्चे आपसे बहुत लाड करते हैं और आपको कोई परेशानी होगी तो डैडी हम लोग भी उदास हो जाएंगे डैडी। तो डैडी अपना भी ख्याल रखिएगा पापा, अपना भी ख्याल रखिएगा। परिवार को कवच में से ढकने के लिए बहुत बहुत शुक्राना डैडी। आपने बड़े किसी संकट को टाल दिया है पापा और हमारे परिवार को कवच से ढक लिया था पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। चालाक औरत का खेल खत्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बच्चे की बीमारी अपने चरणों में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। और इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आपने बीमारी आने से पहले ही उस बीमारी को अपने चरणों में ले लिया है पापा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। जो भी दर्द बच्चे को होना था, गुरु जी ने सह लिया। पापा आप कितना कष्ट लेते हो डैडी। हमें डैडी दुख होता है
डैडी आप अपना प्लीज ध्यान रखिएगा पापा। मिरेकल्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। हर आए दिन कोई ना कोई छोटा बड़ा मिरेकल होता रहता है डैडी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। विपिन अंकल हमारे शुक्राना सत्संग टाइमली शेयर कर देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी हमारे घर पर आने के लिए, आगमन के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। लक्ष्मी माता, गणेश जी और हनुमान जी के साथ हमारे घर में आगमन के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तैयारी शुरू कर ले, हम आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। किस्मत पर लगा ताला खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना डैडी। और गुरुपा आपने सपन में बहुत शुभ 4:30 करीब बहुत प्यारा सपना दिया है पापा, बहुत बहुत शुक्राना डैडी, बहुत बहुत शुक्राना पापा। और चालाक औरत 420 नंबर की औरत का चाल उसी पर उल्टी पड़ गई है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपनी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, एक्सीड हो गया है बट विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी मुझे क्षमा कीजिए, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन थोड़ा पाठ की वजह से आगे बढ़ जाता है। तो अब मैं इसको विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय काली माँ, जय काली माँ, जय सीते माँ, जय सीते माँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी शैल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 27 अक्टूबर सोमवार, 11:41 हो रहे हैं दिन के। और मैं अपने गुरुपा का सुखाना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामन जाप करूँगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामन जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि आपने मुझे, मेरे परिवार को, हम सबको, स्पेशली मुझे जो आपने अपनी संगत में चुना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने चुन के ना इतनी बुराइयां साफ की हैं। संगत जी, सच बात है ना, गंदगी हमारी कौन साफ करता है? हमारी गंदगी कोई नहीं साफ करता, वो हमारे गुरुपा साफ करते हैं हमारी। कोई जो इंसान गंदा हो, हमारे सामने भी कोई गंदा बच्चा आ जाए संगत जी, हम ना उससे वो करने लगते हैं, थोड़ा सा भागने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इंसान अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? जो साफ सुथरा बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो। गंदे बच्चे की तरफ जिसमें कि बहुत सी मान लो गंदगी भी ऊपर से भी है, वो बहुत बदमाश है, ऐसा वैसे बट एक एग्जांपल के बारे में दे रही हूँ, मैं किसी बच्चे की वो नहीं कर रही हूँ, एक बात मैं बता रही हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है संगत जी, हम चूज किसको करेंगे? अगर एक को चुनना हो संगत जी, और अगर दोनों को भी चुनना हो तो हम प्रायोरिटी, नॉर्मल सी बात है, हम उस बच्चे को देंगे जो साफ सुथरा है, बहुत अच्छा बच्चा है, डिसिप्लिन्ड है, तो हर एक चीज में अच्छा, हम उसको प्रायोरिटी देंगे। स्पेशली तब जब अगर हमारा खुद का बच्चा हो संगत जी, तो हम कभी चाहेंगे कि कोई ऐसा बच्चा जो अनडिसिप्लिन्ड हो, गंदा संदा रहे, ऐसा कर हम कभी अपने बच्चे के बारे में भी ऐसा सोचेंगे क्या कि ऐसा बच्चा भी गुरुपा मुझे दे देना, मैं उसको ठीक कर दूँ? कभी नहीं चाहेंगे संगत जी। लेकिन मेरे जैसे इतने तुच्छ, इतनी गंदगी से भरी हुई, इतनी बुराइयों से भरी हुई, जिसको मुझे समझ ही नहीं थी कि ये मेरी बुराई है, इतनी बुराइयां, इतनी गंदगी भरे हुए बच्चे को संगत जी गुरुपा ने अपना बच्चा स्वीकार किया। इतने गंदे बच्चे को कौन करता है? क्या हम स्वयं भी अपने ऐसे बच्चे को स्वीकार करेंगे क्या? भगवान अगर हमें कहें तुझे कैसा बच्चा चाहिए, कभी हम कहेंगे कि मुझे गंदा संदा बच्चा चाहिए? कभी नहीं चाहेंगे ना संगत जी। पर हमारे गुरुपा परम पिता परमेश्वर है संगत जी, बहुत मतलब इतना उनका कल्याण कर रहे हैं वो हमारे ऊपर कि हमारे जैसे इतने गंदे, जिसको कोई एक्सेप्ट ही ना करे,
हम स्वयं के बारे में अगर सच्चाई पूरी जान जाए ना संगत जी, जिस दिन उस दिन हम स्वयं को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, इसकी सोच ऐसे कैसे हो सकती है। अगर हम बियॉन्ड आवर अपने आप को, जो हमारी जो बॉडी है उसके अलावा हम अपने आप को स्वयं खुद को भी देखें, तो मैं खुद की बात बता रही हूँ, इतनी गंदगी भरी पड़ी है। पर गुरुपा ने संगत जी धीरे 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 इतनी सफाइयाँ की, अभी भी बहुत मैल है, इतना मैल है संगत जी। हर दिन गुरुपा हमारा मैल धोते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, मत कर ऐसा, ये गलत बात है, वो ऐसा गलती है, ये गलती, पर नहीं, सुधरने का नाम ही नहीं लेती हूँ। पर फिर भी संगत जी हमें गुरुपा रेस्टिकेट नहीं करते हैं, नहीं करते, कभी नहीं छोड़ते हैं। हम गंदे हैं इसलिए हम भले हाथ छोड़ सकते, पर हमारे गुरुपा हमारा हाथ नहीं छोड़ते, हमें कभी भी अपने हिस्से को अलग नहीं करते। ये हमारी गुरुपा की रहमत है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है। कितनी हर चीज़ों से संगत जी हमें समझाने की, बचपन से जब से जन्म लिए हम कितने चीज़ों से हमें समझाने की कोशिश की, पर नहीं समझ आता ना, बड़े ही बेवकूफ़ बच्ची हूँ मैं। जैसे संगत जी आज हमारा छठ पर्व है, आज शाम का अर्घ होगा संगत जी, डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, सभी को पता है। अब तो ये वर्ल्ड हेरिटेज में अब ये पर्व त्योहार हमारा आ गया संगत जी, उसमें तो पूरी दुनिया इस चीज़ को जानती ही है, और जानेगी भी जो नहीं भी जानते हैं। बचपन से एक चीज़ हमें गुरुपा ने कितना सिखाने की कोशिश की ना, पर उस चीज़ को हम समझ नहीं पाए। आज जा करके संगत जी, मैं आज की बात बता रही हूँ, रियली बात बता रही हूँ संगत जी, आज मुझे समझ में आया कि बचपन से तो गुरुपा हमें सिखा ही रहे हैं, पर हम कहाँ सीख रहे उस चीज़ को। मतलब डूबते सूरज को संगत जी हम अर्घ देते हैं इस विश्वास के साथ कि अगले दिन सुबह में सूर्योदय जरूर होगा, फिर हम उनको भी अर्घ देते हैं, है ना। मतलब हमें गुरुपा ने तो बचपन से एक चीज सीख दी ना, सीखने को दिया, बताया, समझाया। एक अलग चीज है कि हम उस चीज को, पर्व को बस एक एक कहते नहीं कि बस एक रीति रिवाज समझ के उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम एक हमारे जो भी हमारे पर्व त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो भी चीजें हैं, हर एक चीज के पीछे ना एक रीजन है, भगवान ने एक रीजन बना के भेजा हमारे पास। पर हम उस रीजन क्या, क्यों ये चीजें की जाती संगत जी, हम उस चीज को ना आंतरिक रूप से समझ ही नहीं पाए। हमारे भगवान ने तो उसी चीज के लिए बनाया, पर हमने उस चीज को, बस हर चीज को सेलिब्रेट करना सिखा दिया, हमें भी खुश होना भी सिखाया उस चीज, लेकिन सेलिब्रेट किस चीज के लिए करें वो चीजें हम समझ नहीं पाए। भगवान ने तो हमें बताया, सिखाया भी, समझाया भी, पर वो चीजें जब कमी हो गई ना संगत जी, तो गुरुपा ने अपनी संगत में जोड़ा। अब धीरे धीरे कान पकड़ के ना सिखा रहे हैं कि देख इसका क्या मतलब है। संगत जी रियली बात बता रही हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता थी, रियली बात मैं बता रही हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ लड़की, इतना गहन बचपन से मम्मा कर रही है, मम्मी मेरी छठ का व्रत करे, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, प्रणाम करना मतलब है कि हमारे लाइफ में अगर जैसे डूबते हुए सूरज, मतलब उस टाइम से फिर हमारे जिंदगी का स्लो डाउन होने लगता है, हम नीचे गिरने लगते हैं ना, जैसे सूर्य का अस्त होता है। तो उस समय भी हमें हमेशा भगवान का शुक्राना करना है, जो गुरुपा अब हमें सिखाते हैं। हमें ये याद रखना है कि उस समय भी ना भगवान को, जो भी चीजें हो रही हैं, इस विश्वास के साथ कि जैसे सूर्य डूबते हैं, सूर्य भगवान नीचे जाते फिर वो उदय होते हैं, हम सबकी इसी तरीके से हम सभी की वो लाइफ एक परीक्षा होती है, नीचे भी जाते ऊपर उठते, नीचे जाते ऊपर उठते। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि हमारे लाइफ में सिर्फ एक ही चीज हो। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? नहीं हुआ। लेकिन गुरुपा ने आज मुझे समझा दिया कि मेरे बच्चे, मैं तो तुझे बचपन से, जब तू जन्म लिए, तेरे घर में हो रहा है, घर पे हो रहा है, तो तुम इस चीजों को समझने के लिए मैंने ये पर्व त्योहार बनाया, पर इंटरनली तो कभी समझ ही नहीं पाई तू कि क्या है। तो जब भी अगर हमें लगे कि यार मेरे लाइफ में तो सब कुछ बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है, हम तो गिर रहे हैं, कितना अच्छा था, हम तो खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस चीज का शुक्राना करो। इसका मतलब है कि आज का दिन जा रहा है ना, तो एक अगला नया दिन हमारे जीवन में आने वाली है, आने वाली हो, बहुत सी खुशियां लेकर के भी आएंगी, फिर वो भी खत्म होगा, फिर नई चीज आएंगी। जैसे हम बच्चे होते तो क्या लाइफ टाइम बच्चे ही नहीं रहते ना, हम बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, फिर हम उससे बड़े होते यंग होते हैं, फिर हमारी एडल्ट होते हैं, फिर उससे भी बड़े, फिर हम ओल्ड एज होती है संग जी हमारी चीजें, फिर हम हमारी आत्मा चेंज हो जाती है, मतलब बॉडी चेंज करके कहीं और जाती है, या तो मुक्ति मिलती है, या तो फिर हम, एक साइकिल ये बना हुआ है
फिर ये चीजें फिर क्यों नहीं संगत जी हमें बहुत कुछ सिखाती, हमारे पर्व त्योहार जो हमें भगवान ने, हमारे गुरुपा ने ब्लेस किया है। और गुरुपा ने तो स्पेशली ये भी बोला है कि सूर्य भगवान की पूजा किया कर, क्योंकि ये बात सच है ना संगत जी कि कितना कुछ हमें सिखाते हैं, पर हम सीख क्या रहे हैं? बस ये करना वो करना, हर चीज के पीछे कहते हैं ना एक साइंटिफिक रीजन होती है, तो वो हमारी कृपा का दिया हुआ है संगत जी। क्यों वो चीजें होती हैं, क्यों करने से उसको क्या कारण है? मेरे गुरुपा, ये शुक्राना करना आपने सिखाया मेरे गुरुपा, आपने बताया जीवन में जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा सब कुछ ना जा रहा है, मेरा सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ मैं गिर रही हूँ, मैं गिर चुकी हूँ, मतलब एक नई चीज के लिए एक जुनून के साथ हमें फिर से खड़ा होना है। जो चीजें ऊपर होंगी वो चीजें नीचे भी जाएंगी। हर एक हम कोर्सेस हम पढ़ाई करते उसमें भी ये चीजें होती है संगत जी, लेकिन हम उस चीज को अपने लाइफ में फॉलो कर लेना, हम कभी भी रोएंगे ही नहीं, रोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर उस चीज को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना, उस चीज को समझना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमारे गुरुपा ने बहुत इजी कर दिया संगत जी, शुक्राना करवा करके हमसे जो करवा रहे हैं ना, गुरुपा करवाते हैं। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, इतनी बुराइयां भरी पड़ी है संगत जी, इतनी बुराइयां भरी पड़ी है, और इतनी है बुराइयां, कहते हैं ना कि, और मेरे गुरुपा ने हमें अपनी गलतियां दिखाते हैं संगत जी। आज तक हम क्या कर रहे थे, हमेशा दूसरे की गलती देखना, दूसरे की गलती करना, ABC करना, अब्यूज करना, ब्लेम करना, क्रिटिसाइज करना। हमें तो ऐसा लगता था कि अगर ये ना, अगर कहते ना कि अगर हम पचेगा नहीं खाना हमारा, अगर ये चीजें नहीं करेंगे ना तो हमारा तो खाना ही नहीं पचता था। एक टाइम पे ऐसा था, हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी बात क्रिटिसिज्म की तरफ चली जाएगी, कौन सी बात हम ब्लेमिंग पे उतर जाएंगे कि यार मेरे जीवन में ये हुआ वो हुआ, बस उसके कारण हुआ ये हुआ। बहुत सी चीजें हम करते आए, मैं करती आई संगत जी, हम की बात मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये मैंने बहुत किया, मेरी बहुत सी मैंने अपनी लाइफ में गलतियां की, बहुत क्रिटिसिज्म में मैं रही, उसने ऐसा किया, एक वैसा किया, चाहे लाइफ में जो भी हुआ हो, बहुत सी बुराइयां कूट कूट के इतनी बुराई भारी पड़ी, जैसे लगता था कि मैं तो ना दुनिया का सब कुछ ज्ञान मुझे ही है, मुझसे ज्यादा तो कोई ज्ञानी कोई है ही नहीं, मुझे सब कुछ पता है, सब आता है मुझे, कि कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता था संगत जी, टाइम पे मेरे में इतनी बुराई भरी पड़ी थी। कहते ना कि ये अहंकार कब उत्पन्न हो जाता है पता नहीं होता, पता ही नहीं चलता संगत जी, कब पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ा अहंकार हमें मारता कब है, जब हमें कृपा ने अच्छा बनाया, मान लो किसी चीज में अच्छा बनाया और हमें अच्छा होने का अहंकार हो गया कि भाई मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मेरा ये चीज बहुत अच्छा है, मैं तो, और अगर ये भी चीज कि मैं तो भाई किसी की मान लो कि चुगली निंदा नहीं करती हूँ, ये नहीं करता, अगर मेरे में अगर ये भी चीज आ जाती है ना संगत जी, या मैं तो भाई ये गलती नहीं करती हूँ, मेरे मन में ये आ जाता है ना जब भी कभी भी, अभी की भी बात बता रही हूँ संगत जी, तुरंत वो गलती होती है। क्यों गलती करवाते हैं हमारे गुरुपा? ताकि हमारे अंदर वो अहंकार ना भर जाए, हमसे हम अगर अच्छा भी कर रहे हैं और अच्छा करते करते अगर हमें अहंकार हो गया, भाई मैं तो बड़ा अच्छा कर रहा काम करती हूँ, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, उस चीज का अहंकार अगर उत्पन्न हो गया ना संगत जी, वो सब बेकार हो गया। वो अहंकार फिर एक दिन इतना बढ़ जाता है ना, फिर हमसे इतने बुरे काम करवाता है, इतने बुरे काम करवाता है ना वही अहंकार, कि सारी अच्छाई अच्छाई धरी की धरी रह जाती है। लेकिन हम बहुत ज्यादा बुरा ना करें अपने लाइफ में आगे बढ़ के, उस अहंकार बस किसी दूसरे को इतना ना कष्ट पहुंचा दे, होता है। तो हमारी कृपा क्या करते संगत जी, जैसे कि कुछ भी चीजें हम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हमें उस चीज का कृपा को समझ में आ गया, हमें नहीं समझ में आता है संगत जी कि मैं ये अच्छा काम कर रही हूँ, तो मुझ में अहंकार आ गया, अचानक से मन में आ गया संगत जी। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मैं स्कूल कॉलेज के टाइम की बात बता रही हूँ, मेरे लाइफ में एक मतलब अहंकार कैसे मेरा तोड़ा है उसका एक उदाहरण देती हूँ। जैसे बचपन से पढ़ाई लिखाई करती थी, स्कूल में कभी चीटिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, स्कूल कॉलेज सब जगह टॉपर रही, जो भी था। तो एग्जाम्स में ना, एग्जाम में दूसरे बच्चे जो होते थे दूसरे कॉलेज के भी ना, वो ना मुझसे पूछ पूछ के लिखते थे, वो मतलब मेरा देख देख के लिखना ऐसा करके।
तो मेरे अंदर एक अहंकार क्या हो गया संगत जी, मैंने अपने लाइफ में कभी चीटिंग नहीं की। मैंने अपने कोई भी एग्जाम में कभी किसी से एक क्वेश्चंस तक नहीं पूछा। जो भी किया मैंने अपने दम पे किया। उस चीज का मुझ में कहाँ से अहंकार हो गया संगत जी, मुझे नहीं पता। बहुत अहंकार हो गया मेरी वजह से। मेरे जो हमारे पेरेंट्स होते हैं घर पे, अरे मेरा बच्चा तो बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है, कभी उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। कहते हैं ना कि कभी कभी चीटिंग होती है एग्जाम में, और जहाँ की एग्जाम में जैसे कि आप ऐसे बोर्ड एग्जाम्स हो रहे तो वहाँ पे सारे सारे बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, मैंने इकलौता वहाँ पे चीटिंग नहीं किया। ठीक है, वो धीरे 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 ना वो ना अहंकार का रूप ले लिया। समझिए मेरे गुरुपा ने मेरा अहंकार कैसे तोड़ा। लाइफ में एक एग्जाम ऐसा आया कि उसका ना मेरे पास बुक्स थे, कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ अवेलेबल था ही नहीं पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं था। उस एग्जाम में मुझे चीटिंग करनी पड़ी। रियली बात बता रही हूँ, मुझे चीटिंग करनी पड़ी संगत जी। मतलब देख देख के लिखना, दैट्स चीटिंग। आप किसी से पूछ के लिख रहे हो, आप किसी का देख के लिख रहे हो, दैट्स चीटिंग। चीटिंग क्या होती है संगत जी? ये तो होती है ना। मुझे अहंकार किस बात का था संगत जी, मैंने तो कभी किसी से पूछा तक नहीं कुछ। मतलब इतने सारे बच्चों ने चीटिंग करके वो पास किया बोर्ड एग्जाम्स तक, मैंने खुद के दम पे किया और उन लोगों से मैंने फिर भी मैंने अच्छा मार्क्स लाई है। वो चीजें, ये अहंकार संगत जी मेरी कृपा ने तोड़ा। मैं हमेशा से जब होता था ना तो मैं बोलती थी भाई मैंने तो अपनी लाइफ में कभी चीटिंग नहीं की, ये वो दिस दैट, मैं बड़ा गर्व से बोलती थी संगत जी। लेकिन ये जो मेरे लाइफ के जो सिनेरियो हुई ना संगत जी, लाइफ में एक ही बार चीटिंग की, उस चीज ने मेरे अहंकार को तोड़ा, गुरपा ने तोड़वाया संगत जी। आज के डेट में जब ये बातें चलती है ना, कभी मैं ये बात नहीं बोल सकती कि मैंने नहीं किया है। हाँ मतलब मैं चुप हो रह जाती हूँ, रियली बात बता रही हूँ। लेकिन लेकिन एक घमंड का होना, वो चीजें खत्म किया अब मेरे गुरुपा ने। अगर वो चीजें नहीं होती ना संगत जी, तो मेरे अंदर वो अहंकार अभी भी होता। तो गलती हमसे क्यों होती है संगत जी? ताकि हम अपने आप के अच्छाई, हमारी जो अच्छाई है हमारे अंदर की, वही हमारी बुराई ना बन जाए। इसलिए फिर हमसे ना ऐसी एक चीज की गलती करवाते हैं गुरुपा संगत जी, जो हमारे अहंकार का कारण ना बने, अहंकार को तोड़े। गुरुपा ने मेरी लाइफ में ऐसे से बहुत सी चीजें की संगत जी, जो अच्छाई मेरी बुराई का एक कारण बन गई, जो अच्छाई मेरे अहंकार का कारण बन गई। धीरे धीरे चीजें होती हैं कि हम कब हमारे अंदर अहंकार हो जाता है पता नहीं चलता। वो मेरे अंदर की बुराइयां, मतलब कहते हैं कि धीरे धीरे इतना तोड़ा करते करते आज के डेट में जब मैं सोचती हूँ तो मेरी कृपा का शुक्राना ही निकलता कि अनंतम शुक्राना है मेरी कृपा का। मेरी अच्छाई ही मुझे एक कभी कभी कहता है इतना अहंकार मेरे अंदर ला रही थी। मैं अपने मैं बहुत एक गलत रास्ते पे जा रही थी संगत जी। पर गुरुपा को समझ में आ गया मेरा ये बच्चा, इसकी अच्छाई इसको ले डूबेगी। उस समय वो अहंकार आ गया, वो क्या, अब अहंकार आ गया तो गए ना काम से भाई। तो चीजें आज देखो क्या है कि आज मैं कहते नहीं कि, और ये भी संगत जी, आज मैं ये जो अपनी जो गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ ना, इस लायक भी मेरे गुरुपा ने बनाया संगत जी, मुझे बनाया इस लायक कि आज मैं खुद की गलती एक्सेप्ट कर पाऊं। मैं खुद को ये समझ पाऊं कि मैं अहंकारी थी और अभी भी हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने मेरा बहुत सा अहंकार तोड़ा। मेरे गुरुपा ने, ये जो चालाकियां होती है सब हमारे अंदर कब आ जाती है पता नहीं चलता ना, नहीं पता चलता है। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका कि आपने मेरी ऐसे ही मेरे साथ बहुत से असंख्य हम सभी के साथ होती है, लेकिन मेरे साथ तो इतने असंख्य शुक्राना सत्संग है हमारे गुरुपा का कि हम जीवन भर अपने गुरुपा का शुक्राना करें ना तो वो भी कम है। श्वास श्वास भी शुक्राना करें वो भी कम है हमारे जीवन में। गुरुपा ने इतना हमें, कहते हैं कि एक जिस चीज को हम अच्छा समझ रहे वही चीजें हमें गर्त में लेके जा रही है। उस अच्छाई का क्या ही फायदा जो हमें अहंकार दे जाए। ये चीजें हैं, गुरुपा ने बहुत समझाया, बहुत सिखाया कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। क्यों मैंने तुम्हारे अंदर वो अच्छाई डाली? इसलिए कि तू अहंकार कर सके, इसलिए कि तू लोगों के सामने अपनी जो है बड़ी बड़ी बातें कर सके, इसलिए नहीं दिया ना। अच्छाई दिया भला के लिए, भले करने के लिए किया है ना, अच्छा काम करे तो। और लेकिन अगर वो चीजें हमें गलत की ओर लेके जा रहा है तो फिर क्या फायदा संगत जी? हमसे तो वो अच्छे भले ना संगत जी जिन्होंने चीटिंग करके पास की एग्जाम में, और वो भाई बोले कि हाँ भाई मैंने चीटिंग किया है।
जिनके बारे में पूरी दुनिया जान रही है। हमसे अच्छे तो वो है ना संगत जी, हम क्या अच्छे हैं? मेरे तो घमंड हो गए, उनको तो घमंड भी नहीं हुआ संगत जी। वो तो बोल रहे हैं कि भाई नहीं भैया, मैंने तो चीटिंग कर कैसे करके पास किया। हमसे तो अच्छे वो हैं जो जिन्होंने अपनी गलती को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया हुआ है। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है क्या? नहीं है, कैलिबर है ही नहीं कर सकते। वो मैं सत्संग में भी मेरे गुरुपा बुलवा रहे, क्योंकि अगर मेरे सामने अगर 10 लोग बैठे ना, मैं नहीं बोल पाऊंगी संगत जी ये बात। लेकिन मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे सामने कोई है नहीं। मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है हाँ लोग सुनेंगे, हमारी संगत फैमिली सुनेगी, पर मेरे सामने वो बैठ के नहीं सुनेगी, ना मैं उनके सामने बैठ के बोल पा रही। इतनी हिम्मत अभी भी नहीं है संगत जी मेरे अंदर। फिर भी अगर मैं बोल पा रही हूँ, ये मेरी गुरुपा की देन है। मेरे गुरुपा, इस बात का भी मुझे अहंकार ना हो जाए मेरे गुरुपा। बड़ा छोटा सा कहते हैं ना ग्लास का होता है वॉल, ये अहंकार और हमारे बीच में। कब ये टूट जाए, शीशे का है अहंकार, कब टूट जाएगा ना, कब थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बस गिरा और चकनाचूर हो गया हमारा, और कब क्या हो जाएगा पता नहीं, कब अहंकार आ जाए नहीं पता, कब कौन से क्षण में कौन से पल में। मेरे गुरुपा बस बचा के रखिएगा, मेरे गुरुपा निवाह बना के रखिएगा। गुरुपा ने एक बात मुझे ना हमेशा एक बात हिदायत दी, हमेशा स्टार्टिंग से, कुछ भी कर हमेशा निवाह होके रहना, ही निवा होके रहना। एक बात मुझे हमेशा समझाते, निवा होके रहना, घमंड मत लाना अपने अंदर, घमंड मत लाना अपने अंदर। क्योंकि गुरुपा ने वही तो मेरा साफ किया ना, बहुत सारा साफ किया, अभी भी बहुत सी चीजें बाकी है। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना है। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे वाने सरदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु Jai जी, जय गुरु Guruji, जी, शुक्राना गुरु जी। Shukrana Guruji, Sangatji, I'm Guruji's blessed daughter from Meerut, sharing my Shukrana Satsang on 24th October, Friday, दिन के 1:45 बज रहे हैं अभी. It's exactly 1:48 afternoon. With the month jap, I would like to start my Shukrana. I would offer my Shukrana in Guruji's lotus feet. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी बाबा के शुक्राना अनेक और ब्लेस करने के तरीके एक, जिससे शुक्राना अनेक। बाबा का किन शब्दों में कैसे शुक्राना किया जाए। बाबा, शायद मैं असमर्थ होकर भी एक आपकी स्ट्रेंथ के कारण समर्थ हूँ। मैं उसका शुक्राना करती हूँ, सत्संग सेवा देने का शुक्राना करती हूँ। मेरे को जहाँ आपने रखा है, जैसे रखा है, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। आई डोंट नो जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट रीजंस, कैसे, क्या, क्यों, क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट ये बात मैं इसका भी शुक्राना करती हूँ क्योंकि मुझे ये खुली आंखों से दिख सकता है, फील हो सकता है कि सब उनकी रजा में राजी होके हो रहा है। ये यहीं पे सीमित नहीं। कल मैं ना तो सत्संग शेयर कर पाई और ना ही बुक रीडिंग कर पाई, लेकिन सत्संग गुरुजी ने उसके बाद भी करा दिया। इतने गप्पे लगवाए, इतनी बातें करवाई, 2 घंटे का सत्संग वैसे भी करा दिया। बाबा, आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। इतने सारे आंसर्स देने का शुक्राना करती हूँ, लाड प्यार करने का शुक्राना करती हूँ, इतना आशीर्वाद देने का शुक्राना करती हूँ, इतना संभलवाने का शुक्राना करती हूँ, और इतनी सारी टेलीपैथिकली आंसर्स देने का शुक्राना करती हूँ। आई डोंट नो कौन सी बात, क्या करना ठीक, क्या गलत, बट पता नहीं आज भी मन में यही बात है कि जो करा रहे हो आप करा रहे हो, सृष्टि के रचयिता आप हो, सृष्टि को आप चला रहे हो, और जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है, ये नहीं कहूँगी सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि जो आपकी दृष्टि में सही है वही सही है, और ये जो भी हो रहा है ये शायद आप ही करा रहे हो, तो आपकी ही दृष्टि में हो रहा है,
आपकी देख रेख में हो रहा है तो ये भी सही है। एक मुझे तो यही लगता है और मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ। आई नो बाबा, आप मेरे को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के ज़रिए बता रहे हो कि गुस्सा शांत करना ज़रूरी है, गुस्से में आके मत बोल ला कर, चुप हो जा। जब भी ऐसी सिचुएशन में आया कर, मंत्र जाप किया कर, गुप्त मंत्र जाप करना है तेनू। बाबा, आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ इतनी बातें करने का, समझाने का, बतलाने का, आगे बढ़ाने का। लेकिन अभी भी मन में कुछ यही भाव है कि शायद गुस्सा तो मेरे अंदर है ही नहीं, ख़त्म आपने बहुत पहले कब का कर दिया है। शायद जो मेरे मन में, दिमाग में, मेरी बुद्धि में भरा है वो एग्रेशन है। और एक बात समझ में आई मुझे कि जो गुस्सा होता है और जो एग्रेशन होता है वो बहुत अलग बातें होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं। क्यों अलग होती हैं संगत जी? बाबा, मैं इस उससे कह रही हूँ कि गुस्सा तो हम अपने आप का कंट्रोल नहीं हुआ, निकल गया, या फिर कंट्रोल हो जाता है। आप इतनी शक्ति दे देते हो कंट्रोल करने की। मेरे को आपने बड़े मंदिर का लंगर खिला खिला के गुस्सा कंट्रोल किया है, कर दिया है कि मतलब मैं गुस्सा मेरा फुल हो जाता है, समझ नहीं आता। अभी आया 2 मिनट अलग बैठूंगी फिर मैं शांत हो जाती हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि आपने बड़े मंदिर का मेरे को प्रसाद खिला खिला के गुस्सा काट दिया है। क्योंकि ये बात मैंने संगत जी सचखंड विद डिवाइन लव हिंदी वर्जन वाली बुक में पढ़ी थी। हिंदी वाली ही मैंने बाय करी है, गुरु जी ने कराई है, क्योंकि उनको उनको शायद पता था कि ये बातें इस तक पहुंचनी ज़रूरी है। और उन्हें सब पता ही होती हैं बातें, वैसे तो शायद क्या बोलूँ, लेकिन मैं इस बुक को अपने आप से शायद अप्रोच नहीं करती, बट ही पुट्स मी इनटू द कंडीशन कि ये तेरे लिए है। क्योंकि बाबा को ये बात अच्छे से पता है, उनकी बेटी इग्नोर कर देती है जब लोगों पे आती है, लेकिन जब उन्होंने करानी होती है तो वही बातें बार बार आगे ला के रख देते हैं, उस सिचुएशन में डाल देते हैं कि मैं खुद ले लूँ। ये भी मेरा एक सत्संग ही है, ये बात को बतलाना, और मैं उसका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सचखंड विद डिवाइन लव जो बुक है उसमें मैंने एक बात पढ़ी, सुखमनी आंटी के द्वारा लिखी गई बुक है। और आंटी बताते हैं, गुरुजी कहते हैं आंटी को, और सुखी आंटी तेरा गुस्सा शांत हो गया? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी हो गया। तो उन्होंने कहा हाँ, जो बड़े मंदिर में मैंने तेनू मिर्च खिलाई थी वो खिला खिला के तेरा गुस्सा सब काट दिया है। और मेरे को अभी भी याद है, लास्ट 2 बार जब मैं गई थी मेरे को बड़े मंदिर के लंगर में मिर्च लगी थी। और मैं ये बात पूरे विश्वास से कहती हूँ संगत जी कि बाबा ने मेरा गुस्सा शांत कर दिया, वो मिर्च खिला खिला के। और शायद अचार भी था और मैंने वो खाया भी था, क्योंकि डांट एकदम लगा के खिलाई थी गुरुजी ने। और वो खिला के गुरुजी ने मेरा गुस्सा वहीं पे शांत कर दिया। थोड़ा सा गुस्से में एक आंटी बैठे थे और उन्होंने मुझे डांट दिया था कि ये भी खाओ, ये करो, ऐसे करो। वो बहुत गुस्से में थे उस टाइम। हाँ, जो गुरुजी की रज़ा में रहते, गुरुजी की रज़ा में ही शायद कुछ लिखा होगा, क्योंकि बड़े मंदिर में के पास आने का प्रोग्राम ही बन गया और एंड टाइम पे बना था। बिल्कुल प्रोग्राम में नहीं, वो एकदम एंड टाइम पे, लाइक 8 बजे निकलना है, 7 बजे एकदम हो गया बड़े मंदिर चलना है, चलो फिर ऐसा हुआ था। तो गुरुजी को सब पता है क्या चीज़ कैसे ब्लेस करनी है। तो यही एक बात मैं कहूँगी, गुस्सा तो मेरे अंदर बिल्कुल गुरुजी ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन एग्रेशन, जो गुस्सा और एग्रेशन का मैं डिफरेंस अपने मन के भाव व्यक्त कर रही थी, और जो मुझे समझ में आया है टेलीपैथिकली भी, और बहुत चीज़ें टेलीपैथिकली समझने में मेरी हेल्प करी गुरुजी ने। क्योंकि
एक होता है ना कि जब हम किसी से बात करते हैं तो अपने सॉल्यूशंस भी खुद में ही ढूंढ लेते हैं बात करके। तो गुरुजी ने टेलीपैथिकली जैसे बात करी तो मुझे ये चीज़ समझ में आई ही कि शायद अब गुस्सा नहीं बचा, एग्रेशन बचा, क्योंकि आई फील दैट अगर गुस्सा होता तो वो दिमाग में बैठ गया होता, तो वो दिमाग में ही रहता। नहीं, एक सेकेंड, सॉरी। अगर गुस्सा अंदर होता तो उसको ही हम बात को पकड़ के बैठ जाते, क्यों बोला, क्यों किया। हाँ, बाय चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट वो शांत नहीं होता, राइट। और एग्रेशन क्यों कह रही हूँ मैं इसे, एग्रेशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने अंदर फील करी है। क्या पता ये बात किसी संगत जी का आंसर देने के लिए बुलवा रहे हैं गुरुजी की मैं गुस्से में भी हूँ ना, मैं एग्रेसिव हो रही हूँ, इसलिए हो रही हूँ क्योंकि एग्रेशन एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आता है। और सिचुएशन इन अ सेंस कि अगर मैं एक एनवायरनमेंट में बहुत लंबे टाइम तक हूँ और वो बहुत निगेटिव होता जा रहा है, 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार, 5 बार, 1 महीना, 2 महीना सुन रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं वो सुनी तो उसका सॉल्यूशन एक समझ में आया कि वहाँ से निकल जाओ। एक सॉल्यूशन है, वहाँ से निकल जाओ। गुस्सा आया तो तुम कंट्रोल करके निकल जाओगे, लेकिन वही चीज़ सुनते जा रहे हो, वो चीज़ नहीं अच्छी लग रही या नहीं समझ में आ रहा, तो ओके, तुम उसे सुनोगे, तुम उसे एनालाइज करोगे, तुम उसे सुनोगे ना तो तुम उसको देखोगे, समझोगे, और वो दिमाग में चलेगी, और दिमाग में चलेगी, वो देखोगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे बिहेवियर में आने लगेगी। और जो दुनियावी लोग हैं जो वो करते हैं आजकल की जनरेशन में, और आजकल के जो लोग हैं वो एग्रेसिव, गुस्से से ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी चीज़ों के सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहे, करना भी चाह रहे हैं, सॉल्यूशन का आउटकम नहीं निकल पा रहा है ना, तो वो एग्रेशन की तरफ ले जाता है। अब जो कि एक इंसान एक एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे टाइम से देखे जा रहा है, हर एक का अलग होता है, हर एक के फेसेस अलग होते हैं, तो वो देखे जा रहा है, करे जा रहा है, और उससे निकलने की सॉल्यूशन को बताए क्या है, क्या नहीं है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, तो इट लीड्स टू एग्रेशन कि मैं कुछ आगे भी नहीं कर पा रहा हूँ। गुस्सा नहीं है, गुस्सा तो शांत हो गया, गुस्सा होता तो लोगों से एक शिकायत होती, राइट। लेकिन अगर एग्रेशन, मेरे को इसलिए लग रहा है कि मेरे को लोगों से तो शिकायतें बिल्कुल ख़त्म ही हो गई ना, सिर्फ एग्रेशन इसलिए कह रही हूँ रह गया क्योंकि लोगों से कोई शिकायत नहीं, बस मैं अपनी चीज़ अपने आप में भी नहीं कर पा रही हूँ। शायद एग्रेसिव व्यक्ति वो होता है जो संगत जी अपने आप से परेशान हो, दुनिया से नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल गुरु जी ने कुछ ऐसी जगह शायद रखा है कि मुझे बातें बतलाने के लिए भी, और मैं बिल्कुल इस बात का, गुरु जी की हर एक बात का मान रखती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ, और ये बात अच्छे से समझा दी गुरु जी ने मुझे। शायद मेरे को अभी भी यही लग रहा है, मैं किसी की बात का वो नहीं करूँगी, उल्लंघन नहीं करूँगी, बट यही एक बात है मन में, मतलब चाहे वो मेरी ही फैमिली के मेम्बर फोन बोले या कुछ भी बोले, ये कि मैंने गुस्सा किया, बस मुझे इतना अपने लिए समझ में आ गई कि गुस्सा मेरे अंदर ख़त्म हो गया है, सिर्फ एग्रेशन रह गया है, जो गुरुजी बाय चेंजिंग ऑफ एनवायरनमेंट ठीक कर देंगे। एंड एक चीज़ और, एग्रेशन जो मैं ये बात बोली है मैंने इसलिए ये चीज़ इसलिए यहाँ से मेरे को समझ में आई क्योंकि भले ही कितना ही नेगेटिव एनवायरनमेंट हो जाए, एकदम मैं जैसे कहता है ना फट के पड़ गई, एग्रेशन एकदम वॉल्केनो का इरप्शन की तरह निकल गया। उसके बाद जब मैंने किसी और से बात करी, किसी और से सुना, सत्संग हुए, समझी, तो मेरा वो चीज़ अपने आप का समझ में आ गया कि नहीं, वहाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा माइंड चेंज हो गया। अगर शायद गुस्सा होता तो वही चीज़, अगर मैं सत्संग में भी बैठती तो वही चीज़ निकल जाती, गुस्सा निकलता ना फिर, क्योंकि दुनियावी लोगों से दिक्कत है, वही बातें निकलती। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गुस्सा, एंगर एंड एग्रेशन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये बहुत खूबसूरत तरीके से आपने मुझे ये चीज़ समझाई। और
बहुत अच्छे से आप चला रहे हो, समझा रहे हो और मेरे को लेके जा रहे हो, और आपका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ इस बात का। और जो बनाया आपने, बनाया जैसा बनाया आपने, बनाया जहाँ लेके जा रहे हो आप लेके जा रहे हो। और आई ओनली थिंक दैट आई कैन पे यू और आई कुड पे यू इफ़ डूइंग शुक्राना, क्योंकि बाबा आपने ही मेरे को ये बात बोली है, ये बात बताई है और ये चीज़ समझाई है कि बोला है कि तू शुक्राना करना मत छोड़, लेकिन ये भी बोला है कि अपनी ब्लेसिंग्स को कुछ हद तक गुप्त रख। तो इसी कारणवश पंकज जी मैं अपना नाम सत्संग में नहीं बताती हूँ और गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए अभी नहीं बता रही हूँ, और गुरु जी की आज्ञा हुई अगर तो बहुत जल्द मैं अपने सत्संग में ये चीज़ शेयर करूँगी, अपना नाम बताऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर एक ब्लेसिंग का शुक्राना, इतना लाड प्यार करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना। पंकज जी की फिर ने मुझसे बोला कि गुरु जी फिर दूर जाके क्या तू खुश रह पाएगी। मैंने उत्तर दिया बड़े प्यार से कि दूर मैं क्यों ही होंगी, क्योंकि ये बात, ये वचन मुझे गुरु जी ने बोले हैं कि तू मेरा हाथ छोड़ सकती है, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ सकता। और ये चीज़ मैंने सच में देखी भी, फील भी करी। एग्रेशन और अपने इन सब चीज़ों के चक्कर में गुरु जी को बोला भी, बट अगले दिन फिर उनकी शरण में आ गई, बैठ गई शुक्राना करने। गुस्सा एग्रेशन उन्होंने शांत कर दिया। शायद वो गुस्सा, एग्रेशन के साथ गुस्सा भी था कि मैं एकदम बोल गई, क्योंकि नाराज़गी थोड़ी सी थी उनसे, बट स्टिल शायद नेगेटिविटी का भी ज़्यादा असर था कि मैं गुस्सा निकल गया। मुझे कभी कभी ये भी फील होता है कि नेगेटिविटी जहाँ होती है वहाँ पे गुस्सा आता ही आता है। और यहाँ पे मैं दोबारा से एक और शुक्राना करती हूँ बाबा का कि वो कहते हैं कि तेरे घर पे जो नेगेटिविटी आ रही थी वो मैंने बैकफायर कर दी है और हर एक नेगेटिविटी को दूर कर दिया है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय पंकज जी। बाबा सब आपकी रजा में राजी होके हो रहा है और आपकी देख रेख में हो रहा है। और मुझसे कभी कुछ ऐसा मत कराना कि मैं किसी को दुख दूँ और किसी को नेगेटिव इफ़ेक्ट दे सकूँ। और अगर मुझसे आप कुछ करा ही रहे हो, कुछ करवा ही रहे हो, तो वो शायद ज़रूरी होगा। यही एक भाव है मेरे आज का सत्संग एंड करते हुए, और इसी भाव के साथ मैं चल रही हूँ। शायद वो ज़रूरी होगा। ये बात पहले भी बहुत पहले मैं बोली हूँ बाबा को, और अब फिर मैं यही चीज़ शेयर करी है आज। गुरु जी ने कराना है या कुछ समझवाना है या जो कराना है वही जाने, मैं नहीं जानती। बट आपका अनंतम शुक्राना। और कल एक और बहुत डिवाइन ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, जिसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। अभी शायद शेयर करना उचित नहीं, तो नहीं करूँगी, बट मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और वो ब्लेसिंग कुछ ऐसी थी पंकज जी, जैसा गुरु जी का हम सुनते थे ना बड़े मंदिर में जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, कि वो कुछ ब्लेसिंग किसी एक पर्टिकुलर पंकज जी तक मैसेज कन्वे करना है तो उनको ही सुनता था, किसी और को नहीं सुनता था। वो भले ही वो भी वहीं हो बट नहीं सुनता था। तो वो ब्लेसिंग कुछ ऐसी ही है। कुछ बातें मैं सत्संग सुनते सुनते ब्लैंक हो जाती हूँ, या फिर ये भी एक उसी ब्लेसिंग का एक वो है। एक्जैक्ट मैं अभी सत्संग नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट बात बता रही हूँ कि ब्लेसिंग बड़े मंदिर वो सत्संग सुनते सुनते ब्लैंक हो गई। किसी की बातें, गुरु जी की कुछ बात चलते चलते शायद टॉपिक डाइवर्ट हो गया या कुछ, मैं ब्लैंक हो गई। लेकिन फिर भी ये सुन शायद वही पाई जो मेरे लिए था। और ये चीज़ मैं ट्राई किया, जैसे यूट्यूब वीडियो पे सत्संग पूरा चल रहा होता है तो मैंने सुना, और जैसे अगर 7.13 सेकेंड पे मैंने सुनना स्टार्ट किया तो मैं उससे पहले वाला नहीं सुन पाई। फिर मैं कहा नहीं वो वाला सुनना है पहले। मैं दोबारा सुना तो मैं वहीं से आके दोबारा सुन पाई, वो सुन ही नहीं पाई मैं।
भले ही सत्संग चल रहा था, धूप चल रही थी, बट नहीं सुन पाई। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी सॉरी, सत्संग काफ़ी लंबा हो गया, और बाबा आपका अनंतम शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करवाने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।